medical science has advanced, and that we have very good treatment available. Like chemotherapy and radiotherapy, but simultaneously they have their own side effects. And because of the side effects, and the word cancer itself makes patient and their family members very weak and exhausted. And the word they start cancer, and they start that shivering and all start, mental distress start. So in that specific phase, along with conventional treatment, if you go for homeopathy or allopathy or any alternative therapies, that definitely helps patient to have improve life, and to beat the side effects like nausea, hair loss, weight reduction, or they don't feel osteoporosis and fatigue, disappointment. Everything can be covered with various lifestyle modification, and with help of homeopathy and naturopathy and other alternative therapies. So first, today I would like to emphasize more mainly on exercise, diet, rest and sleep. We'll go quickly. So exercise is considered as a wonder drug for cancer patient, and many studies have also suggested us that if patient who are doing vigorous exercise can reduce the, as Dr. Radhika has mentioned, few women are having more chances because their family member might have this cancer. So if they this female do regular exercise at least 30 to 40 minutes, uh, vigorous exercise, they can reduce their chances of getting cancer up to one-fourth of the risk. So it also prevents as well as helps cancer patient to get rid of various side effects. It not only helps to reduce weight, it also helps to maintain other hormonals, their mood. How much exercise should be done? That NCI recommend is 30 to 60 minutes of moderate vigorous exercise. Obviously, patients who are undergoing for treatment, they might be not able to do this vigorous exercise. For such patient, I would suggest to doing clapping. Simple clapping for a few minutes have a wonderful effect, which we have seen in our earlier session of clapping therapy. Then, as the day progresses and as the patient recovers, they can go for simple exercise like cycling, brisk walking, or simple doing household work such as heavy cleaning or mowing the lawn and all. This type of basic exercise definitely helps them to be feel a normal and come back to normal their routine. Then we'll shortly go to diet. Uh, People consider cancer can be a cause of chronic inflammation. So definitely taking anti-inflammatory food or adding them in our diet helps in better management of cancer. So what type of, specifically color fruits, vegetables and color foods may be key to cancer fighting diet. The brighter and richer the pigment, the higher the level of cancer fighting nutrients. That is said by Kennedy, one of the researchers. So let's see a few of the superfoods that we can include in diet. Specifically, I would suggest the cancer patient or survival or to prevent, one should include in our diet. One is turmeric, हल्दी. हमारी हम लोग जो खाना खाते हैं, हल्दी हमारे इंडियन खाने में होती है। तो उसमें जो कर्क्यूमिन होता है, दैट हेल्प्स टू कंट्रोल द, दे से रिसर्चर्स ने बताया है कि वो कर्क्यूमिन है, वो बेसिकली वर्क्स एज एंटी इंफ्लामेटरी और कैंसर प्रोग्रेशन को कंट्रोल कर सकता है। सेकंड है, दूसरा है जो कैबेज फैमिली, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इंक्लूडिंग काले एंड स्प्राउट्स। तीसरा आएगा जो नॉन वेजिटेरियन लेते हैं उनके लिए फैटी फिश, साल्मोना एंड ट्यूना। और हम लोग जो ओमेगा 3 के लिए जा सकते हैं तो फ्लैक्सीड्स एंड ऑल सीड्स आर एडवाइजेबल। Then fourth most important is intake of citrus like vitamin C. So berries है, oranges है, so vitamin C का loaded होना बहुत जरूरी है। Green and yellow vegetables as carrots, sweet potatoes, squash and pumpkins. Try to add this as much as you can in your diet, so to have improve your health with cancer.
लास्ट में विल गो फॉर रेस्ट एंड स्लीप. रेस्ट, एवरीवन नोज कि रेस्ट और प्रॉपर स्लीप होने से हमारी हेल्थ सेहत अच्छे से रहती है, एंड वी हैव ऑलरेडी नो नॉलेज अबाउट इट. लेकिन मेरा ये कहना है कि रेस्ट शुड बी नॉट ओनली फिजिकल, इट शुड बी इमोशनल रेस्ट ऑल्सो. Try to engage yourself, specifically when you are having a treatment. Be with your supportive friends. Friends play major role, like आपको आके हंसाते हैं, आपसे बात करते हैं. Laughter therapy is the best therapy if you consider this, like spend some time for yourself, just get relaxed. कोई मैं I would suggest to develop some hobby, not for earning, but to spend some time with yourself, like doing simple gardening, or music, listening good music, or learning a music, something creative that keeps patient alive, aware, and keeps them busy, so that negativity or disappointment and everything does not clutter in their mind and lead them to depression. So rest and sleep again is most important thing. Then we'll come to alternative therapies, alternative system of medicine, I would suggest. So we have Ayurveda, homeopathy, naturopathy, even acupressure, all that help. So this all should be a part of treatment with conventional treatment like chemo and radio should be there. लेकिन उसकी जो side effects होती है उसके लिए ये सबका भी साथ में दवाई आप ले सकते हो. So main thing in cancer is managing pain. So homeopathy, naturopathy, even acupressure, all that helps in pain management. दूसरा आता है नेचुरोपैथी. नेचुरोपैथी में दे मोर फोकस ऑन डाइट, फिर योगा, मेडिटेशन, फिर उनमें 3-4 आती है, जैसे नेचुरोपैथी. द कॉमन कंपोनेंट ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ कार्सिनोमा इन नेचुरोपैथी इंक्लूड्स कोल्ड कंप्रेशन, लोकल तर्पण, जूस एंड ऑयल मसाज, इंटेक ऑफ पोटेंशियल नेचुरल न्यूट्रिशंस, डाइटरी रिस्ट्रिक्शन थोड़ा कराते हैं, फिर कोलोनल क्लींजिंग, ये सब इंक्लूड होता है नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट के लिए. सो दिस विद दिस ऑल नेचुरोपैथी. एक्यूप्रेशर में अगर आपको सर्टेन पेन्स होते हैं, हेडेक एंड ऑल, if you press certain points, then you definitely get relief with certain pains and all. Then some patients who are not having proper sleep, I would suggest to take a help of aromatherapy, like having scented oil, scented oil diffuser in your room while sleeping. That helps to have a good sound sleep, and you can get rid of insomnia. Then laughter therapy, which I think it's a must. Everyone should spend enough time for staying happy and to laugh. It's not necessary every day you feel to laugh. Even artificial laughing also helps, that we have seen in our earlier session. So this is the small modification, lifestyle modification, and information about alternative therapy, how they help. Okay, Nidhi, this is, thank you very much. हमारे इस अवेयरनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे छायांके के मेंबर्स, जैसे निशा शेनॉय जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है कैपजेमिनी में, उन्होंने हमारा साथ दिया. हमारे साथ झांसी लक्ष्मी राव रही, छायांके की अवार्डी रही हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया. हमारे साथ उत्तमा मुखर्जी बेहरा रही, जिन्होंने जो अपर्णा सरोवर ग्रांडे की वाइस प्रेसिडेंट हैं अभी और छायांके की गोल्डन मेंबर हैं. लता जी के बारे में मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी, शी इज अ ब्यूटिशियन, हमारे यहाँ ब्यूटिशियन है, और पूरे जितने समय वो बीमार रही उन्होंने किसी भी दिन अपना राइटिंग नहीं रोका, और उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया हमेशा कि किस तरह से उनको काम करना चाहिए, किस तरह से आगे आना चाहिए. उन्होंने अपने लिखने के द्वारा लिख कर लोगों को इसके बारे में जागरूक किया, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में. और उनकी पूरी कोशिश रहती है कि वो ना ही अपना काम बंद करें और ना ही लिखना बंद करें. वो दोनों चीजें साथ साथ चला रही है. उनका ब्यूटी पार्लर बहुत अच्छा चल रहा है, साथ में उनकी राइटिंग बहुत अच्छी चल रही है. जबलपुर में उनका काफी नाम है, उन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हुए हैं. मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे साथ छायांके के जितने मेंबर्स हैं, गोल्डन मेंबर्स, सिल्वर मेंबर्स,
सभी ने इस कैंपेन में अपना साथ दिया। मौसमी सैनी जो योगा मेंटर है, श्रद्धा भार्गव और गरिमा गोयल, ये हमारे IT प्रोफेशनल्स हैं। साथ ही साथ डॉक्टर सुनीता श्रीवास्तव पैथोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने हमारी इस अवेयरनेस को लोगों तक पहुंचाने में बहुत साथ दिया है। मेरे साथ गैलेक्सी हॉस्पिटल की लेडीज डॉक्टर, लेडीज स्टाफ, सभी ने इस सब में बहुत मदद किया और लोगों से चर्चा की इस बारे में। लता जी, सबसे पहले तो हम छायांकी की तरफ से आपका बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। पहले हमें ये बताइए कि लॉकडाउन में आपने अपना ये सफर कैसे तय किया, कैसे डॉक्टर्स को खोजा और किस तरह से अपना ट्रीटमेंट लिया, क्योंकि लॉकडाउन तो सभी के लिए बहुत कठिन था। बहुत धन्यवाद दीदी जी, आपको भी, छाया जी आपको भी, और बाकी जो हमारे मेंबर सब इस समय मौजूद हैं उनके लिए उनको बहुत बहुत आभार। लॉकडाउन के दरमियान जब मुझे ये बीमारी के बारे में मालूम चला तो बहुत मुश्किल समय था, वो मेरे लिए बहुत टफ टाइम था। और सबसे बड़ी बात ये है कि बीमारी मालूम चली और फाइनेंशियली मैं इतनी स्ट्रांग नहीं थी और कहीं जा सकते नहीं थे, आ सकते नहीं थे, किसी डॉक्टर से कांटेक्ट नहीं कर सकते रहे, कोई बात नहीं कर सकते रहे। तब वो समय सचमुच रियली बहुत टफ टाइम था कि, और आप बताइए मैं कितनी पीसफुली, बड़ी शांति से रहती थी कि जो होना होगा होगा, देखी जाएगी। अगर ऊपर वाले ने मुझे जिंदा रखना है और मुझे ट्रीटमेंट कराना है तो कहीं ना कहीं से वो रास्ता निकालेगा। और ऊपर वाले की कृपा रही और सबकी दुआएं थी कि रास्ते अपने आप निकलते गए और ट्रीटमेंट होता गया। जबकि मैं 9 महीने तक बिना किसी इलाज के थी। 9 महीने मैंने भी कुछ इलाज भी नहीं कराया था। बायोप्सी कराने के बाद भी मेरा मार्च में डायग्नोस हुआ था, 6 मार्च को, और मैंने 4 नवंबर को पहली कीमो कराई है। वही, ये मतलब लॉकडाउन का समय आम इंसान के लिए बहुत कठिन, कठिनाइयों वाला रहा। आपने उस दौरान अपनी पूरी शक्ति एकत्रित करके, पूरी पॉजिटिविटी एकत्रित करके किस तरह से काम किया, वही हम सबके लिए प्रेरणा का विषय है। और मैंने देखा है कि आपने इस दौरान कभी भी अपना लिखना बंद नहीं किया। तो आप मुझे बताएंगे कि वो किस तरह से आपको प्रेरित करता रहा और किस तरह से आपके अंदर पॉजिटिविटी लेकर आया आपका लिखना? एक्चुअली पॉजिटिव मुझे समझती नहीं हूँ कि मेरे पास पॉजिटिव कभी रही नहीं, ऐसा मुझे कभी महसूस नहीं होता है। मैं शुरू से बहुत आशावादी हूँ। 99% भी अगर कोई उम्मीद छोड़ दे तो मेरे पास 1% 100% के बराबर होता है कि वो आखिरी क्षण भी होता है तो मेरे लिए पूरी उम्मीद की किरण लेके आता है कि कहीं ना कहीं से मुझे कुछ ना कुछ तो रास्ता मिलेगा ही। और ऊपर वाला साथ है, सबकी दुआएं साथ है, तो कुछ ना कुछ रास्ता मिलेगा। यही चीज थी कि जो मुझे एक उम्मीद बना के रखती थी। और लिखने की आदत तो शुरू से ही है। कुछ ना कुछ लिखने के बहाने से अपने मन की बातें निकाल लेती थी तो बहुत मन को हल्का मिलता, हल्का होता था। अच्छा, तो क्योंकि मैंने पूरे लॉकडाउन में जब भी मैं यहाँ रही हूँ, मैंने आपके जितना भी आपने लिखा है उसको पढ़ा है और हर रोज पढ़ा है। तो यही हम सबके लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का विषय रहा है कि जो बिस्तर में है, जो इतना जूझ रहा है, वो कैसे इस तरह से इतना पॉजिटिव रह सकता है। अच्छा, आप मुझे एक चीज और बताइए कि इस बीमारी के दौरान आपके मित्रों ने, आपके फैमिली ने किस तरह से और डॉक्टर्स ने किस तरह से आपका सहयोग किया ताकि आप सबसे पहले बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली देखा जाए तो मैं आज यहाँ पर सही सलामत हूँ, अपने ऑफिस में काम कर रही हूँ, अपने पार्लर में। उसकी यही वजह है कि मेरे साथ के, मेरे मित्रों के, मेरे कस्टमर की, मेरे परिवारजनों की, सबकी दुआएं मेरे साथ हमेशा से रही हैं। और उसी कारण से मुझे संबल मिलता रहा, हौसला मिलता रहा, और मैं एक पल के लिए भी डगमगाई नहीं। लोग पूछते हैं कहीं सोचा मत करो बीमारी के बारे में, डिप्रेशन तो नहीं होता है। मैं तो बीमारी के बारे में अगर मैं सोचती हूँ तो रास्ते निकालने की सोचती हूँ, कुछ उपचार सोचती हूँ, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ क्लू मिले, कुछ रास्ता निकले, कैसे क्या ट्रीटमेंट करना है। और अगर नहीं कर पा रही हूँ ट्रीटमेंट तो ऊपर वाला नहीं चाह रहा है, इसलिए नहीं हो पा रहा है ट्रीटमेंट। मेरे सब रिश्तेदारों ने भी, मेरे घर के परिवारजनों ने भी, सबने बहुत सहयोग किया, बहुत सपोर्ट किया। और मेरे कस्टमर तो 4-4 6-6 महीने वेट करते रहे कि जब तुम आओगी, जब पार्लर आओगी, जब तबीयत ठीक हो जाएगी तभी हम काम कराएंगे और हम कहीं नहीं जाएंगे। उनकी दुआएं थी। फेसबुक पे जब मैंने पहली बार पोस्ट किया, फेसबुक में अपने बिना बालों का फोटो पोस्ट किया, इतने लोगों के फोन आए, इतने लोगों के मतलब मैसेज आए, फोन आए कि आपको क्या हो गया है, कैसे क्या हो गया। हाँ,
सब तो लोग के लिए वो- शॉकिंग था कि लॉकडाउन कोई कहीं मिल नहीं सकता था, सबके लिए हाँ, शॉकिंग था वो हाँ, कि हाँ, अचानक कैसे क्या हो गया। है कि आपने आज धन्यवाद जी। अवेयरनेस सेशन में हमारा साथ दिया और लोगों को इस बारे में जागरूक कर रही हैं कि किस तरह से उनको इस बीमारी से लड़ने के लिए पॉजिटिव होकर बाहर आना चाहिए